Okay, the gel electrophoresis having we first see the gel type, means what is the difference between the agarose and the polyacrylamide gel. अभी ये जो हमने देखा कि यहाँ पे एगेरोज एंड पॉलीएक्रिलामाइड मोस्टली यूज किए जाते हैं, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमें पता होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट एगेरोज. एगेरोज इट इज अ पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ सीवीड. अगार भी एक पॉलीसैकेराइड है जो कि सीवीड से बनता है, बट उसका और भी प्यूरिफाइड फॉर्म है एगारोज. ओके, तो एगारोज की जो साइज है दे आर वेरी स्मॉलर देन द अगार, बट हमें यहाँ पे कंपैरिजन देखना है पॉलीएक्रिलामाइड के कंपैरिजन में. तो एगारोज यहाँ पे एक पॉलीसैकेराइड है. पॉलीसैकेराइड मींस इट इज अ टाइप ऑफ शुगर एंड पॉलीएक्रिलामाइड है. It is a cross-linked polymer of a acrylamide. Okay, acrylamide एक chemical compound है और उसका वो poly-linked form है. Okay, then agarose it is a gel casted horizontally. हम जो agarose का gel बनाते हैं वो हमेशा horizontal manner में ही बनाते हैं. And the polyacrylamide का जो gel बनता है it is was always in a vertical manner. Okay, we cast that gel in a vertical manner in a between the two glass slabs. Okay, then agarose it is a non-toxic because it is a naturally produced by a natural seaweed. Okay, but polyacrylamide it is made up of acrylamide and it is a chemical compound which acts as a potent neurotoxic. Means it is act on our nervous system and can cause its damage into that. Okay, means it is a potent neurotoxic. That's why we by using this polyacryl powder, when it is in a powder form, it is a more toxic for us because a small particle of that powder when enter in our body, it can cause any problem in with our nervous system. But when we mix that powder in a water or a liquid sample, any liquid buffer or a water, then it was a less toxic as compared to the powder form. Okay, then next was the agarose. Agarose having a agarose can separate large molecule, but polyacrylamide gel can separate a small molecule. Then agarose commonly used for a DNA or a nucleic acid separation, but polyacrylamide can use DNA as well as a protein separation. Okay, then agarose staining can be done before the pouring the gel, and the polyacrylamide gel staining can be done after the pouring the gel. हम यहाँ पर जो स्टेनिंग करते हैं एगारोस जेल में, एगारोस जेल में हम डीएनए और आरएनए और न्यूक्लिक एसिड के लिए मूव किया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड को स्टेन किया जाता है बाय यूजिंग दी इथिडियम ब्रोमाइड. हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं. इट इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल और वो यूवी लाइट में हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाता है. दैट्स व्हाई वी यूज that staining material is used before the pouring into the gel. जब हम वो लिक्विड फॉर्म में होता है अगर तभी हम ETBR उसमें ऐड कर देते हैं. आफ्टर दैट वी pour that gel in a casting tray. Okay, but in polyacrylamide gel वहां पर हम जेल पहले लिक्विफाई जब होता है तो वहां पर हमें हीट नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है. इट इज अ केमिकल कंपाउंड एंड आफ्टर द pouring into the gel and after the total completion of a polyacrylamide gel electrophoresis, means after the running of gel after that we stain that gel. Okay, हम उसके बाद उसकी स्टेनिंग की जाती है by using a different stain material. Okay, so let's see about the agarogel electrophoresis. Okay, the electrogel electrophoresis क्या होता है? So it is a commonly used support medium. Agarose gel electrophoresis it is used as a agarose is a commonly support medium. Then it is a less expensive than the cellulose acetate electrophoresis, and also from by the polyacrylamide gel electrophoresis also it is a less expensive. Okay, then it is a
इक्वली गुड सेपरेशन, वहां पर सेलुलोज एसीटेट में जैसे सेपरेशन हमें अचीव होता है, नियर अबाउट दैट इसका भी जो सेपरेशन हमें अचीव होता है, इट वाज सिमिलर लाइक अ सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। बट सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है एज compared to agarose. Okay, then agar is a complex acidic polysaccharide containing a monomer of a sulfadic galactose. इसके जो मोनोमर्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सल्फेटेड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को सल्फेट ग्रुप ऐड है, ऐसे गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का ये पॉलीमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड एगारोज इज अ सल्फेट फ्री फ्रैक्शन ऑफ अगार। समझ में आया अगार एंड अगारोज में डिफरेंट क्या है? एगेरोज इट इज अ सल्फेट फ्री। हमने बोला ना अगार के अंदर जो गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है दे आर हैविंग अ सल्फेट मॉलिक्यूल, बट अगारोज डजंट हैव एनी सल्फेट मॉलिक्यूल, इट इज अ सल्फेट free fraction of agar molecule. Okay, that's why agarose is a more purified form of agar. Okay, then gel is prepared in a buffer and is spread over a microscopic slide. यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लो एज वेल एज द कास्टिंग ट्रे लो, हमें वहां पे जेल बना सकते हैं, किसी पे भी बना सकते हैं। Then a small sample of a serum or any biological sample is applied on a cutting in a gel with a sharp edge. Then the electrophoresis run take place about a 90 minutes, near about 90 minutes. And okay, the pore size may be predetermined by the adjusting the concentration of agarose in the gel. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम अगारोज की जो पोर साइज है इट कैन मेंटेन बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट। ओके, तो हम यहाँ पे अगारोज की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके हम अगार की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की अलग अलग पोर साइज में जेल बना सकते हैं। agarose gel are fragile in nature, it was break easily. Okay, then they are actually hydrochloride and they are held together by the formation of a weak hydrogen and the hydrophobic bond. Then pores of agarose gel are the large. Agarose is used to separate macromolecules such as the nucleic acids and the large proteins and the protein complexes. Okay, यहाँ पे हमने अगारोस के बारे में, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा। अभी there are some advantages about the agarose gel electrophoresis are agarose gel electrophoresis is easy to prepare and a small concentration of agarose is required. Okay, then resolution is superior than the filter paper. जो भी हमारा यहाँ पे resolution आएगा मीन्स जो हमारे बैंड्स आएंगे उसका जो भी शार्पनेस है इट इज वेरी लार्ज और सुपीरियर देन द नॉर्मल फिल्टर पेपर बैंड्स। ओके, देन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन कैन बी सेपरेट एंड देन रिकवर। हम यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ अगर प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं फॉर द सेपरेशन ऑन द अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वहां पे जो लार्ज साइज की प्रोटीन है हम उसका अच्छे से सेपरेशन भी कर सकते हैं और उसकी रिकवरी भी इजीली कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन is a negatively charged protein molecule is a negligible. वहां पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता। इट्स एब्जॉर्ब प्रोटीन रिलेटिव लेस देन एज कंपेयर टू अदर मीडियम। यहाँ पे सबसे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है एज कंपेयर टू अदर जेल मटेरियल। देन शार्प जोन आर ऑब्टेन ड्यू टू द लेस एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होता है इसलिए जो भी बैंड फॉर्मेशन होता है इट वाज अ शार्प जोन। ओके, एक पर्टिकुलर शार्पनेस उसमें हमें विजिबल होती है। ओके, देन रिकवरी ऑफ प्रोटीन इज अ गुड मेथड फॉर अ प्रिपरेटिव पर्पस। यहाँ पे प्रिपरेटिव एनालिसिस के लिए हम इसका अच्छा अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। बट ऑल द टेक्निक्स आर हैविंग सम डिसएडवांटेज आल्सो। तो यहाँ पे भी हमारे अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कुछ डिसएडवांटेजेस लाइक दैट इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज हाई। यहाँ पर हमारी जो आयंस का एक्सचेंज होता है इट वाज समवॉट हाई। ओके, देन रिजोल्यूशन इज अ हाई, रिजोल्यूशन इज लेस एज कंपेयर टू द पॉलीएक्रिलामाइड जेल। जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके कंपैरिजन यहाँ पर
जो रेजोल्यूशन आएगा मीन्स सेपरेशन के लिए जो भी बैंड्स फॉर्मेशन होंगे और जो सेपरेशन फॉर्म होगा, it was somewhat less as compared to polyacrylamide gel electrophoresis. Then the different sources and batches of agar tends to give a different result and the purification is often necessary. यहाँ पे अगर हमने एक ही सैंपल को अगर 2-3 बार सेपरेशन किया, हमने 2 अलग जेल में सेपरेशन किया, तो मे बी उनकी बैंड आगे पीछे वहाँ पे अचीव हो सकती है बेस्ड ऑन मैनी रीजंस। हमारा बफर के क्वांटिटी में कुछ चेंजेस हो गया तो वहाँ पे बैंड्स की जो लोकेशन है वो चेंज हो सकती है, या फिर हमारा जो वोल्टेज है वो अगर आगे पीछे हुआ तो हमारी बैंड आगे पीछे ऑब्टेन हो सकते हैं। और हमारी जेल की जो पोर साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि हमारा बैंड कहाँ पे वहाँ पे लोकेट होगा। ओके, तो अगर हमने सेम सैंपल यूज किया तो हमें क्या सेम बैंड्स मिलने चाहिए, but it may not be achieved correctly at the same location. Okay, then applications of gel electrophoresis are they are widely used in immuno electrophoresis। हम इम्यूनोलॉजी के जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, वो हम मोस्टली एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। अभी इम्यूनो में आपके प्रोटीन्स, आपके डीएनए, देन आपके सीरम मॉलिक्यूल्स, आपके ब्लड सेल्स, दिस ऑल आर कम अंडर द immunology experiments. Okay, so separation different types of a protein mixture as well as nucleic acid। हम agarose gel electrophoresis का यूज ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड द प्रोटीन्स के लिए यूज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ देम वी कैन यूज द agarose gel electrophoresis। ओके, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ अगारोस दिखाया गया है। इट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अ सोल स्टेट एंड आफ्टर the 145 degree Celsius it will इनिशियल जेल फॉर्म में आएगा। वो मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका फाइनल जेल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, फर्स्ट हमने 45 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो उसका अलग स्ट्रक्चर आएगा, देन अगेन उसकी एजिंग की तो उसका अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और नेटवर्क फॉर्म होगा और जेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। अभी आपने देखा होगा जेल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जो ये जो फाइनल जेल स्ट्रक्चर है अगारोस का, इसमें देखो एक सेंटर में पेंटागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, करेक्ट। दिस पेंटागोनल स्ट्रक्चर इज एक्ट एज अ पोर स्ट्रक्चर। Okay, a many different agarose particles when we combine and they form a network like this and they form a pentagonal pores between all the network. Okay, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये स्ट्रक्चर एक्ट करेगा एज अ पोर स्ट्रक्चर ऑफ अ जेल। ओके, यहाँ पे हम somewhat about a star structure, star gel electrophoresis के बारे में भी देखेंगे। Starch, it is also one of the polysaccharide of a glucose molecule। हमारा ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है स्टार्च है। It is also one of the sugar, but it is not in sweet sugar. Okay, then a suspension of a granular starch should be boiled in a buffer and give a clear colloidal solution। जब हम इसको boil करेंगे in a water, when we mix in a water or a buffer, then it become a clear solution and after we pour into the casting tray it will become a cloudy color of जेल। इसका जो भी जेल बनेगा वो क्लाउडी कलर का बनेगा, मीन्स जस्ट व्हाइटिश कलर का जेल यहाँ पे फॉर्म होगा। देन अ सस्पेंशन on a cooling get a semi-solid gel due to the intervening of the branched chain of a amylopectin। स्टार्च के अंदर दो टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, दैट वाज द अमाइलोपेक्टिन एंड सेकंड वन इज अमाइलोज। ओके, तो अमाइलोपेक्टिन इट इज अ ब्रांच polysaccharide of a glucose and amylose is a unbranched polysaccharide। but amylopectin की जो branches है, because of that branches intertwining between the other branch they form a
colloidal structure and become a semi-solid gel. अमाइलोपेक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो वहां पर जो नेटवर्क फॉर्म होगा दैट वाज वेरी close to each other and form a small pore size. But if amylopectin concentration is less in the starch solution, then the pore size will be large because of less intertwining between the branches. Okay, in order to avoid swelling and the shrinking, petroleum jelly is used. हम यहाँ पर swelling avoid करने के लिए पेट्रोलियम जेली भी इसके साथ ऐड करते हैं into that agar starch gel. ओके तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस है. दे शोइंग अ हाई रिजोल्यूशन पावर एंड द शार्प जोन आर ऑब्टेन. The component resolved can be removed in the reasonable yield, especially proteins. Next one is it can be used for analytical as well as a preparatory electrophoresis. Okay, then next इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है लाइक इलेक्ट्रोऑस्मोटिक इफेक्ट होता है मींस आयन फॉर्मेशन और आयन मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा होता है. एंड देन सेकेंड डिसएडवांटेज इज अ वेरिएशन इन अ पोर साइज फॉर अ बैच टू बैच. जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाइलोज का अगर आगे पीछे किया तो हमारी पोर साइज चेंज हो सकती है. वैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांच एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं होती है इसलिए यहाँ पे पोर साइज बैच टू बैच यहाँ पे चेंज हो सकती है. बट इट यस मैम. सबको क्लियर है आता. यस मैम. ओके तो आप लोगों को जो स्टार्च एंड दी अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम देखते हैं ये हम हमारे लैब में भी परफॉर्म करने वाले हैं इन फ्यूचर जब हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे. एंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं फॉर डीएनए और आरएनए के अगर हम कर रहे हैं तो हम जो स्टेन मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि मैंने अभी बताया आपको कि ईटीबीआर हम यूज करते हैं फॉर अ स्टेनिंग एजेंट एज अ स्टेनिंग एजेंट. हम उसको पहले ही हमारे जेल के अंदर ऐड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वी उसको जब हम स्टेनिंग मटेरियल सॉरी ईटीबीआर जब हम हमारे अगारोज में ऐड करेंगे उसके बाद हम उसकी जेल कास्ट करते हैं. बट आपको एक चीज ये ध्यान रखनी जब भी आप ईटीबीआर डालने के बाद और ईटीबीआर जब भी हैंडल कर रहे होंगे तो आपको उसके टाइम ग्लव्स पहनने बिकॉज इट इज अ toxic agent. Okay, it is a it is a highly toxic carcinogenic material and it can cause a cancer if we come largely with that ETVR. और उसकी बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें यूज करना है 0.2 माइक्रोलीटर हमें यहाँ पे यूज करते हैं फॉर अ 25 ml जेल सॉल्यूशन. एंड जब भी उसके बाद आप जेल को हाथ लगाओगे तो आपने जेल हाथ लगाने से पहले ग्लव्स पहनना इज नेसेसरी. ओके तो बिफोर यूजिंग दी ईटीबीआर जेल जब हम अगारो जेल के अंदर ईटीबीआर डाल रहे हैं तो उसके बाद जब भी यूज करोगे तो आपको ग्लव्स पहनना इज नेसेसरी. ओके विदाउट ग्लव्स वी कैन you can never touch that gel. Okay